So we have started our discussion regarding the anal canal, and we have touched the anatomical aspects, which involves the 4 centimeter long anal canal, which starts from anorectal junction superiorly, and then uh, up to the anal verge. So this is anorectal junction, and this is the anal verge where it continues to. We have discussed about the musculature of the anal canal, which involves the external part as external sphincter and an internal sphincter, which is the continuation of the circular muscles of the rectum. And this is under involuntary control and this is under voluntary control. Okay. So in our further discussions, we will be dealing with the pathologies, various pathologies which are pertinent to the this region, and this anatomy is going to become very important for all our discussions next to it. So to start, regarding hemorrhoids, a very common problem, hemorrhoids. If you sit in the OPD of the surgery, to your surprise, you will be having minimum 20 to 25% patients who will be having some sort of benign anorectal diseases. Last time also we touched that this also becomes very important. This becomes very important in this cold weather, where person takes a lot of things to eat, and then water intakes goes lower, and constipation is very frequent in this season, but especially in our part of country. If you compare these benign anorectal problems in the West, they are also very common in the West. Because a lot of refined flour and all is taken in the West, and refined flour and maida naam suna hoga, maida jo hota hai. So because constipation is very prevalent in those who take maida. Up शादियों में जाते हैं ना, तंदूरी रोटी खाते हैं. Tandoori roti is made up of maida, and that is very constipating. So constipation is one of the important factors. So let us discuss about hemorrhoids a bit. So what are the hemorrhoids? They are actually the specialized, highly vascularized cushions. They form discrete masses of thick submucosa containing blood vessel, smooth muscle, and elastic and connective tissue. Okay. It is not like that hemorrhoids are always, they are by the origin they are pathological. They are actually present. आपने anatomy में भी पढ़ा होगा. Normally उनकी जो location होती है वो left lateral position. Left lateral position को आप बोल सकते हैं 9 o'clock position. Right anterior position तो 2 o'clock position, and right posterior position. ठीक है ना. तो 2, 7 और 9 o'clock position पे बोलते हैं, common होता है. So normally these cushions are present. These cushions are normally made up of some blood vessels, smooth and elastic muscles, and some connective tissue. So ये normally ये बनाता है these masses. So they are specialized and highly vascularized cushions which make discrete mass in the submucosa and contain blood vessel, smooth muscle, and elastic muscle and connective tissue. Normally, the term hemorrhoid, this hemorrhoid term, normally they are called as only anal cushions. अभी हम इसको जब normally किसी में नहीं हो रहा है तो इसको anal cushion ही बोलते हैं, जब तक कि ये pathology present न कर जाए in some form or another, maybe in form of parectal bleed or in giving rise to a lot of pain. So the terminology hemorrhoid is restricted to the clinical situation in which these anal cushions, they become abnormal and they cause symptoms. So unless patient is symptomatic, you don't term these as hemorrhoids, and then you term only as anal cushions. Okay. Largely the cause of this hypertrophy and of these anal cushions is not known. There are many factors which have been implicated. As we have discussed, one of the factors is the constipation, which causes the
downward sliding of the anal cushions associated with gravity because of straining and irregular bowel habits. And now you must have seen there are few people who spend a lot of time in the toilet. If they have gone to the toilets, other may have the incontinence. No? They may have to go somewhere outside or anywhere else because they take a lot of time. And most of these people who spend a lot of time in the toilet are constipated. When you take the history of these patients, they will tell you that I am having some scanty amount of rectal bleed, and if you take the history of the bowel habit, many a times they will deny that they have constipation. But if you ask that how much time you spend in the toilet, so you will come across that they spend a lot of time, half an hour, 40 minutes they spend inside the toilet, and this again is a surrogate marker that patient is definitely constipated. Otherwise, that is not a place to enjoy. So anyone cannot be on toilet to enjoy. So because of straining may be associated with constipation. If someone is constipated, some sort of straining will be required to expel the fecal matter. Okay, and then irregular bowel habits. Regularity of bowel habits also becomes important because this is some sort of reflex phenomena. There are people in our society, some are like people who as soon as they get up and they move a bit, or they while brushing even, they have got an urge to defecate and they go for defecation and bowel is clear. This is the one variety. Many people belong to this variety. Other are the people, they have to do some maneuvers. कुछ लोगों का अपने अपने taboos हैं. Some people they take warm water. Some takes a bit of smoking, some take a bit of tobacco to have this urge to defecate, and then it causes them to go for defecation. And there are some people who don't defecate in the morning at all. They just get up and wash their face and start going to their classes or to the office because they don't have a regular bowel habits. So one of the contributing factor is irregular bowel habit also. So straining mostly associated with constipation and irregular bowel habits. This causes the movement of these anal cushions downwards. Now, as we have discussed earlier also, these hemorrhoids can be external or internal. Those lie above the dentate line are internal, not usually associated with pain unless complicated, and the main presentation is parectal bleed. External, lie below or at the level of dentate line, mostly associated with pain, present with pain and bleeding PR. Okay, that is the difference in the external and internal. We'll be touching that later also. So how we diagnose this? History taking is very important. Hardly you need to undergo any investigations to diagnose this issue. जैसे ही कोई patient आपके पास आएगा, as soon as patient will give the history of parectal bleed, you should first have a differential diagnosis in the mind that patient is having hemorrhoids. So next your question should be whether it is painless bleed or a painful bleed. If it's painless bleed, your diagnosis should go towards internal. If it is painful bleeding, it might either be external hemorrhoids or might be internal-external. Sometimes internal and external hemorrhoids, they coexist together. ऐसा नहीं भारत पाकिस्तान की तरह रेखा बनी हुई है, तो they may coexist together sometimes. So history, physical examination and endoscopy. Endoscopy may be in form of anoscopy. अभी हम लोग बाद में बात करते हैं इसके बारे में. External hemorrhoids, they are covered with enoderm. They lie distal to the dentate line. They may swell and they may cause discomfort. Sometimes they bulge outside the anal verge also, which hampers the maintenance of hygiene. Patient बोलेगा साहब साफ नहीं कर पाते, वो नीचे से लटका हुआ रहता है. It becomes really very difficult and may cause sometimes very severe pain if it gets thrombosed. So thrombosed external hemorrhoid is a surgical emergency rather. Okay. In other situation, if it is not thrombosed, it gives rise to pain, but that pain becomes aggravated while straining only.
So some sort of dull, aching, pain, heaviness, sort of, this exists unless patient strains. Once patient strains, the pain aggravates, and then if this hemorrhoid is getting thrombosed, then it becomes very painful, and patient may land up in emergency also. In contrast to this, internal hemorrhoids, they are painless. Okay, they lie above the dentate line. Mostly the presentation is of bright red bleeding. Sometimes they may prolapse also. If they are having a big attachment of these hemorrhoids, they may prolapse sometimes also. It's not like बहुत छोटा सा एरिया है ना, 1-1.5 सेंटीमीटर का एरिया है, 1.4 सेंटीमीटर पे डेंटेट लाइन होती है फ्रॉम द एनल बंच. So they may might prolapse at times also. So there is a classification of these internal hemorrhoids depending upon the degree of hemorrhoids. Okay, so this becomes very important to classify hemorrhoids when you are dealing with. So टेलिंग दीदी फर्स्ट डिग्री ऑफ हेमोरेज, कब आप उसको फर्स्ट डिग्री लेवल करेंगे? जब पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा विद ओनली ब्लीडिंग, देयर इज नो प्रोलैप्स ऑफ हेमोरेज. So this degree of the hemorrhoid, mostly this responds on the dietary modifications only. Hardly there is any need of surgical management. क्या dietary advice देंगे? Any idea? Anyone? So to avoid refined flour and have excess of roughage in their diets. Okay, very good. So lot of roughage has to be taken, है ना? अगर इस समय कॉन्स्टिपेशन के लिए खाने की चीजें आ रही हैं तो लॉट ऑफ सैलेड आइटम्स आर आल्सो देयर ना. ढेर सारा इस समय आ रहा है, कैरेट है, ये मूली है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच माइट फॉर्म द बल्क ऑफ द फूड, एंड यू promote patient to take lot of roughage before patient takes the food. Then water intake should be on the higher side as much as it is possible. अब ऐसा नहीं बोलना है कि 5 लीटर 6 लीटर कितना पीना है, लेकिन as much as patient can take should be promoted to be taken. And then again a habit is very important. आपको ये अपने patients को बताना होगा, they should not strain at all to the stool. It might happen that patient is constipated and it causes the straining to happen. So straining has to be avoided at all. Okay. So you tell your patients that you should not at all try to strain. Okay. Because if patient will strain, this will get to this will cause the endoanal pressure to increase. So if this endoanal pressure will increase, the further these anal cushions will dilate and further the प्रॉब्लम विल गेट एग्रेवेटेड. तो फर्स्ट डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में बनता जाएगा. तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट. दूसरी चीज है पेशेंट शुड नॉट स्ट्रेन. हमेशा कोई भी बेनाइन एनोरेक्टल डिजीज मोस्टली जो है उसमें एक चीज आपको हमने पेशेंट को हमेशा बताना होगा, नेवर स्ट्रेन. तो अब पेशेंट बोलेगा कि साहब जब तक जोर नहीं लगाते हैं तब तक लैटरिंग नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देना पड़े, मे बी इन फॉर्म ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव्स, ये सब चीजें आपको देनी पड़े फॉर द टाइम बिंग. लेकिन एक बार वो रेगुलेट हो जाता है जब डाइटरी मॉडिफिकेशन से, तो उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप खत्म हो जाता है. ठीक है ना. तो टाइम बिंग के लिए टू स्टार्ट विद हो सकता है आपको मेडिकल मैनेजमेंट देना पड़े इन फॉर्म ऑफ, मान लीजिए पेन अगर है तो पेन के लिए कुछ देना पड़ेगा. मोस्टली पेन इज बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ द मसल, तो एंटी स्पाज्मोडिक देना पड़ेगा आपको. अदरवाइज स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव्स, लैक्टोलोज जैसे एजेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको देना होगा इनिशियल पीरियड को कवर करने के लिए. एक बार साइकिल को ब्रेक करना है. क्यों साइकिल को ब्रेक करना है? मान लीजिए एनी पेशेंट हु इज कॉन्स्टिपेटेड, अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड है, पेशेंट विल गो टू द टॉयलेट, स्टूल नहीं डेफिकेट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट विल स्ट्रेन करेगा, एंडोएनल प्रेशर इंक्रीज करेगा, एनल कुशंस डायलेट होंगे, प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी. फिर क्या होगा? स्ट्रेन करेगा, थोड़ा बहुत फीकल मैटर निकलेगा, उसको सेंस ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं आएगा, फिर वापस आएगा, फिर उसको लगेगा कि मेरे को फिर जाना चाहिए, दोबारा टॉयलेट जाएगा, फिर करेगा, फिर एनल प्रेशर इंक्रीज करेगा. तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर्स वगैरह देने पड़ेंगे. स्टूल सॉफ्टनर एक बार दे देंगे, स्ट्रेनिंग अगर ब्रेक हो गई तो एवरीथिंग विल कम ऑन द ट्रैक. तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट डिग्री वो which the management basically relies on dietary management only. कोई intervention का जरूरत नहीं है
इसमें मेडिकल मैनेजमेंट थोड़ा सा अर्ली पार्ट को कवर करने के लिए जरूरी होता है, अदरवाइज कोई सर्जिकल उसकी जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड डिग्री हेमोराइड, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोलैप्स आल्सो, प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग के साथ साथ एसोसिएटेड उसमें जो एनल ग्लैंड्स है उनमें इन्फेक्शन भी होता है, थोड़ा म्यूकस डिस्चार्ज भी आता रहता है। तो सेकेंड डिग्री देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोलैप्स, लेकिन वो खुद ही वापस चला जाता है। तो पेशेंट बोलेगा जब मैं जोर लगाता हूं तो कुछ लगता है जैसे बाहर आ रहा है, लेकिन वो फिर अंदर चला जाता है। तो दिस इज वेरी क्लासिकल हिस्ट्री जो सेकेंड डिग्री में मिलेगा। और इन पेशेंट्स में डाइटरी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट ये सारे में चलता रहेगा, क्योंकि दिस इज द शीट एंकर ऑफ द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हेमोराइड्स। ठीक है, ये these diseases they are the lifestyle related diseases। तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज में आप लाइफ तो बदल नहीं सकते, लाइफ स्टाइल ही बदलना पड़ेगा आपको। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट विल स्टिल कंटिन्यू इन द सेकंड डिग्री इवन। तो इसमें रबर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, बैरेंस बैंड बोलते हैं। तो एक बैंड एप्लीकेटर होता है, उसमें इंगेज करके एनोस्कोपी करके उसमें इंगेज करके हेमोराइड को उसमें एक छोटा सा बैंड लगा देते हैं। ऑफिस प्रोसीजर है, ओपीडी में भी किया जा सकता है। तो पेशेंट को आपने डायग्नोस किया, एनोस्कोपी करी उसकी, आपको देखा हाँ हेमोराइड है, तुरंत रबर बैंड लगा दिया। तो एक चीज जो इसमें ध्यान देने की है कि रबर बैंड जब भी लगाते हैं, जब भी बैंडिंग करते हैं, तो जितने भी एनल कुशन्स आपको डायलेटेड दिख रहे हैं सब में एक साथ नहीं लगाना होता है बैंड। क्यों नहीं लगाना होता है? कोई किसी को के दिमाग कोई आइडिया क्यों एक साथ नहीं लगाना है? एनी गेस? सर अगर एक साथ लगाएंगे तो प्रॉपरली वो नहीं डायलेट हो, एक साथ डायलेट होंगे और ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनी अदर गेस? सर वो स्पिंक्टर की तरह काम नहीं कर पाएगा, बाहर आ जाएगा, स्टूल बाहर आ सकता है पूरे में अगर लगा देंगे तो। अच्छा गुड। अच्छा एक्चुअली अगर आप किसी चीज के बेस पे मान लीजिए कोई आपका गला दबा दे तो क्या हो जाएगा? एस्फिक्सिया हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली सेम सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप जो डायलेटेड एनल कुशन है उसके बेस पे बैंड लगा दिया आपने तो इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। इस्केमिक नेक्रोसिस होगी, जो डायलेटेड एनल कुशन है वो शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना, और बैंड बाहर आ जाएगा। जैसे ही इस्केमिक नेक्रोसिस हो गई और जो कुशन डायलेटेड था वो शेड ऑफ हो गया, बैंड अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने चारों तरफ बैंड लगा दिया तो हो सकता है पूरी की पूरी म्यूकोसा ही इसी तरीके से इस्केमिक नेक्रोस होकर बाहर आ जाए और बड़े अल्सर्स बन जाएं, ठीक है ना। तो एनल परफोरेशन हो सकता है, म्यूकोसा पूरी डेन्यूड हो सकती है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसलिए वी डू नॉट गो फॉर ओवरऑल टोटल रबर बैंड लाइगेशन। हम एक बारी में एक या दो हेमोराइडल मासेस को ही सिलेक्ट करते हैं और उनके बेस पे रबर बैंड लाई देते हैं। ऑफिस प्रोसीजर है, पेशेंट फिर दोबारा आएगा, आप देख लीजिए पिछले बैंड निकल चुके हैं, फिर अगली बार लगा दीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा रबर बैंड लाइगेशन के अलावा लेजर से कोएगुलेशन भी करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर है ये भी, लेजर का फाइबर ले जाकर उसको कोएगुलेट कर दिया या कॉटरी से कोएगुलेट कर सका, लेकिन ये सब चीजें थोड़ा पेनफुल ज्यादा होती हैं, है ना। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिग्री हेमोराइड्स। अभी तक क्या हो रहा था? खुद से वापस चला जा रहा था। नाउ दिस विल रिक्वायर मैनुअल रिडक्शन। तो पेशेंट क्या बोलेगा? साहब बाहर आ जाता है, उसको फिर हमको उंगली से अंदर करना पड़ता है। अदरवाइज सिम्टम्स सेकेंड डिग्री जैसे ही रहेंगे, बस ये होगा कि खुद से अंदर नहीं जाएगा, अब इसको पेशेंट को अंदर करना पड़ेगा। नाउ स्टार्ट्स द रोल ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट, प्रॉपर सर्जिकल मैनेजमेंट इन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो आपने अभी देखा कि हेमोराइड में फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में तो हार्डली सर्जिकल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। शीट एंकर ऑफ द मैनेजमेंट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन, मींस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट टू स्टार्ट विद। थर्ड डिग्री हेमोराइड्स में rubber band ligation can still work many a times, most of the times even, but some of these patients might require surgical hemorrhoidectomy. उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। Now फोर्थ डिग्री हेमोराइड, ये इनके कुछ प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्ट्रैंगुलेटेड की तरह हो सकते हैं। अब क्या होगा, आप नीचे से देखेंगे पेशेंट बोलेगा एक मांस गुच्छा काला काला की तरह बाहर आ रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत दर्द होने लगा। आपने जब उसका एनल एग्जामिनेशन किया तो आपको लगा, दिखाई पड़ा थ्रोम्बोज एक्सटर्नल हेमोराइड्स आ गए हैं। तो दिस इज एक्चुअली सर्जिकल इमरजेंसी।
दिस रिक्वायर्स अर्जेंट हेमोरेक्टमी. डाइटरी मॉडिफिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट वो चलता रहेगा, that will help in the long term management. But these patients, 4th-degree hemorrhoids, they need immediate surgical treatment in form of hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy कई तरीके की होती है, हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको तुरंत जरूरत, क्योंकि इसमें पेशेंट बोलेगा कि अब अंदर नहीं जा पा रहा है. मान लीजिए आपने पेशेंट को बूढ़ा पेशेंट है या कोई कोमॉर्बिडिटी है जिसकी वजह से आप पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते, पूरा सर्जिकल रिस्क है. तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन देना होगा, कई बार स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है. ये जो मांस बाहर आ रहा है इसको बस रिड्यूस कर दीजिए और इसको पैक कर दीजिए. अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो टेंशन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो 4th डिग्री अपने आप 3rd डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा. तो 3rd डिग्री में जो भी हेमोरेक्टमी होती है दैट इज इलेक्टिव सर्जिकल हेमोरेक्टमी. जब भी कोई इलेक्टिव सर्जरी होती है रिस्क कम होता है उसमें. 4th डिग्री में यू नीड टू डू इमरजेंसी हेमोरेक्टमी. तो इमरजेंसी सर्जरी का रिस्क अगर पेशेंट नहीं उठा सकता तो आप उसको ट्राई करिए रिड्यूस करने का. अगर रिड्यूस हो गया तो 4th डिग्री 3rd डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बाद में उसका ऑपरेशन प्लान कर लीजिए. सो दिस चार्ट टेल्स यू अबाउट द मैनेजमेंट एज पर द डिग्री ऑफ हेमोरेज. ठीक है ना. तो मेनली प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कभी कभी होगा कि पेशेंट बोलेगा कि हाँ बूद बूद करके खून टपकता रहता है जब हम लैट्रिन में जाते हैं. तो ऐसे में आपको पूछना पड़ेगा कैसा ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है या क्लॉटेड ब्लड आता है. एट टाइम्स इट माइट बी क्लॉटेड ब्लड ऑल्सो, कभी कभी फीकल मैटर है उसके साथ मिक्स होके भी आता है, बट सम ऑफ द फ्रेश ब्लड ऑल्सो विल ऑल्सो बी देयर. क्लॉटेड मिक्स विद फ्रेश ब्लड विल ऑल्सो बी देयर. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आता है, मेडिसिन वार्ड से रेफरेंस आता है कि पेशेंट इज अ क्रॉनिक एनीमिया एडमिटेड टू आवर साइड, काइंडली इवैल्यूएट. अब आप सोचते रहते हो, सर खुजाते रहते हो कि हम क्या इवैल्यूएट करें भाई, एनीमिया के एक्सपर्ट तो हम है नहीं, बट यू नीड टू गो फॉर एनोस्कोपी ऑफ दिस पेशेंट. ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को 1st डिग्री 2nd डिग्री हेमोरॉइड हो जो थोड़ा थोड़ा ब्लीड करता रहा हो और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को अनीमिया हो गया, तो दिस बिकम्स एन पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द क्रॉनिक एनीमिया पेशेंट. ओके. So now a prolapse which happens to be below the dentate line can sometimes occur in internal hemorrhoids also, especially while straining. ठीक है ना. तो वो जो डेंटेट लाइन होता है उसके लेवल पे हम लोगों ने लास्ट टाइम में बात किया था कि एनल ग्लैंड्स भी होती हैं. तो अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रेनिंग के साथ ये जो इंटरनल हेमोरॉइड है ये बाहर आ गया तो उसके जो एनल ग्लैंड्स है उसके साथ जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो भी आएगा, जैसे हम लोगों ने बात करी 2nd डिग्री में होता है. एंड समटाइम्स दैट देयर माइट बी फीकल लीकेज आल्सो. ठीक है ना. एंड दिस गिव राइज टू इन्फेक्शन, प्रोराइटिस, इचिंग की तरह प्रेजेंट करेगा, है ना. वी हैव डिस्कस्ड दैट पेन इज नॉट यूजुअली अ सिम्पटम ऑफ द इंटरनल हेमोरॉइड्स अनलेस इट इज कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, एक तो फिशर हो सकता है. मान लीजिए पेशेंट को हार्ड स्टूल हो रहा था, पेशेंट ने जोर लगा के हार्ड स्टूल तो निकाल दिया लेकिन वो जाते जाते घाव दे गया, दैट इज द एनल फिशर. तो फिशर बन गया. इसके बाद अभी हम लोगों ने बात किया एनल ग्लैंड्स की, एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो गया, एनल एब्सेस बन गया, उसके साथ प्रेजेंट हो सकता है. या साथ में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल वाला थ्रोम्बोस हो गया. तो अदरवाइज इंटरनल हेमोरॉइड्स आर पेनलेस. तो व्हाट इज हाउ यू एग्जामिन, फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन. आप पेशेंट को कई बार क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं ग्रेड 3 and 4, दिस माइट गेट कंफ्यूज विद द रेक्टल प्रोलैप्स आल्सो. तो रेक्टल प्रोलैप्स के साथ कंफ्यूज हो सकता है. तो जब आप रेक्टल प्रोलैप्स और ये वाले पेशेंट को डिफरेंशिएट करना चाहें, आपको लगेगा एक मास जैसा आ रहा है, तो फिर दिमाग में होगा कि रेक्टल प्रोलैप्स है या हेमोरॉइड है. तो ऐसे में पेशेंट को एक जो काउच है उसके ऊपर स्ट्रेनिंग पोजीशन में बैठा के आपको पेशेंट के एनल वर्ज के रीजन पे सीधे जाके डायरेक्टली इंस्पेक्ट करना होगा. अगर रेक्टल प्रोलैप्स है तो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म म्यूकोसा जैसा नीचे बाहर आएगा. ठीक है ना. इन कंट्रारी टू दैट, इफ देयर इज हेमोरॉइडल प्रोलैप्स, तो हेमोरॉइड क्या होते हैं, वेनस कुशंस होते हैं, तो वो अनइवन, कहीं कहीं उठे हुए कहीं कहीं फ्लैट, तो अनइवन से मास सब बाहर आएगा. तो अगर अनइवन से बाहर आ रहा है तो हो सकता है ये हेमोरॉइडल प्रोलैप्स हो,
कि रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है ना। तो स्क्वाटिंग पोजीशन में पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ सकता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्लिनिकल मैनेजमेंट। हमेशा एब्डोमेन का कोई केस हो और एनल कैनाल तो मतलब छूट ही नहीं सकता, तो यू हैव टू assess with a digital rectal examination, you assess for the presence of internal or external hemorrhoids। वैसे ही पेन है तो एक्सटर्नल के ज्यादा चांसेस है, पेन नहीं है तो इंटरनल के ज्यादा चांसेस है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी है जैसे ही आप रेक्टल फिंगर जैसे ही अंदर डालते हो, पहली चीज आपको कमेंट करना है व्हाट इज द टोन ऑफ द एनल कैनाल। अगर टोन ठीक है या बढ़ी हुई है तो हो सकता है पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा हो। ऐसे में बहुत ज्यादा पेन अगर है तो आपको एनल एग्जामिनेशन अपना अबैंडन करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा पेन के नाते वैसोवेगल से कम जा सकता है पेशेंट। यू शुड नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। सबसे पहले लुब्रिकेट करके फिंगर को जेंटली ट्राई टू इंसर्ट। इफ टोन इज वेरी मच इंक्रीज, आपको अपना एग्जामिनेशन अबैंडन करना पड़ सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए, नेक्स्ट सेटिंग में पेशेंट को बुलाइए, फिर से एग्जामिन करिए, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ मेनी ऑफ दीज इश्यूज might getting treatment but they are malignancy। तो हो सकता है कि CNL कैनाल हो, बाहर कोई इसको हेमोराइड की तरह ट्रीट कर रहा हो, तो आप जैसे ये फिंगर डालोगे, अगर मास है तो हार्ड मास तो नहीं है, अगर हार्ड मास है तो थोड़ा मैलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज रूल आउट कर लिया कि देयर इज नो नियोप्लास्टिक इशू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एनोस्कोपी। एनोस्कोपी इज डिफरेंटिव मैनेजमेंट। आपने देखा होगा हम लोग प्रोक्टोस्कोपी एनोस्कोपी करते रहते हैं ओपीडी में, इस समय तो आप लोग नहीं जा पा रहे होंगे। तो एनोस्कोपी एक प्रोक्टोस्कोप होता है, उस प्रोक्टोस्कोप में एक ऑब्ट्यूरेटर होता है और एक उसका आउटर शीथ होती है। तो पहले ऑब्ट्यूरेटर के साथ आउटर शीथ को हम लुब्रिकेट करके इंसर्ट कर देते हैं, फिर ऑब्ट्यूरेटर को निकाल देते हैं, थ्रू विच वी इंस्पेक्ट। कभी आप एनोस्कोपी डालिएगा अभी यूट्यूब वीडियो, यू कैन इजीली सी व्हाट इज द एनोस्कोपी, नहीं तो ओपीडी में आएंगे तो विल डेफिनेटली शो व्हाट इज द एनोस्कोपी। तो एनोस्कोपी से क्या होगा, एनोस्कोपी जो एनोस्कोप होता है उसकी लेंथ मोस्टली 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो होती है, तो हम लोग एनोरेक्टल जंक्शन तक आराम से देख लेते हैं। अगर इसके भी ऊपर देखना है तो समटाइम्स फ्लेक्सिकल प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एनोस्कोप इज क्वाइट वाइडर थिक होता है, पेशेंट उतना मान लीजिए नहीं जा पा रहा है, पेशेंट को पेन काफी ज्यादा हो रहा है, तो ये जो फ्लेक्सिबल वाला होता है ये पतला होता है, लेस देन द विड्थ ऑफ योर फिंगर। तो इसके थ्रू आप जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो इससे एक फायदा और होगा, यू कैन गो इवन हायर अप एंड यू कैन सी वेदर देयर इज नो को एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी। कभी कभी मान लीजिए हो गया कि सीए रेक्टम है उसके साथ हेमोराइड हो गया, आराम से हो सकता है, बेनाइन डिजीज तो को एग्जिस्ट कर ही सकती है उसके साथ, मैलिग्नेंसी के साथ। तो मान लीजिए पेशेंट को एक्चुअली सीए रेक्टम है लेकिन उसको अभी हेमोराइड के नाते ज्यादा ब्लीड हो रहा है, हेमोराइड के नाते ज्यादा परेशान है, तो वो फ्लेक्सिबल प्रोक्टोस्कोपियोडोस्कोपी जो होगी उसमें पता चल सकता है। समटाइम्स कोलोनोस्कोपी, प्रॉपर कोलोनोस्कोपी जिसमें पूरे के पूरे कोलन को विजुअलाइज करना है, ये भी जरूरी हो जाता है, स्पेशली इन दी एल्डर पेशेंट्स, जिसमें आपको बहुत लगे कि नहीं पेशेंट को मान लीजिए एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी है, जो उसका मास है वो थोड़ा सा ड्यूबियस है, आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर कुछ और हो सकता है, तो आप प्रॉपर कोलोनोस्कोपी में या बेरियम एनीमा के लिए भी जा सकते हैं टू रूल आउट अ मैलिग्नेंसी व्हिच इज कोएग्जिस्टिंग विद दिस इशू। ओके, अभी हम लोगों ने बात किया कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द हेमोरॉइड्स and the main treatment lies on either non-surgical or a surgical management. Non-surgical treatment is part and parcel of all degrees of hemorrhoid. Non-surgical चलता रहेगा क्योंकि वो that has got two components. First is the management of the acute condition and second is the management of the long-term issues. To prevent the future recurrences. A lot of recurrences are there in the hemorrhoid. ठीक है ना। और हेमोराइडेक्टमी के बारे में बात करें, अब हम लोगों ने ये अभी बात करी ना डीआरए एनोस्कोपी के लिए, ये मान लीजिए एनल कैनाल है, ये देखिए एक थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोराइड, ये बाहर से ही दिख रहा है, ये एनल वर्ज है, इस तरीके का थ्रोम्बोस है, काला काला पड़ गया है, ये थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोराइड हमें बाहर से ही दिख रहा है। ये दिस पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर, इसमें फर्स्ट डिग्री हेमोराइड आपको देखेगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री हेमोराइड बहुत डायलेटेड दिखता भी नहीं है, दैट इज मोस्टली सीन जस्ट एज अ
small rise in the mucosa or just in form of punctate hemorrhage, कहीं कहीं से छोटा छोटा spurt of bleeding आता दिखाई देगा, तो that is mostly seen. ये वाला जो outer sheath आपको दिख रहा है, मैं इसी proctoscope की बात कर रहा था, तो इसके अंदर एक ऐसा solid सा जाता है, that is obturator. इस obturator को निकाल के sheath को छोड़ देते हैं, through which we can easily see. इसमें टॉर्च जला के हम देखते हैं कि ये हेमरॉइड है. Now this is the second degree हेमरॉइड. आ तो जाता है, अपने आप खुद ही बाहर चला जाता है. ये D is the third degree हेमरॉइड, जिसमें आ जाता है लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है. देखिए ये वाला हेमरॉइडल मास, ये खूब बड़ा सा हेमरॉइडल मास ये वाला है, ये वाला खूब बड़ा सा. इसमें भी देखिए ये छोटे छोटे 2 हेमरॉइडल मासेस हैं. इसमें ये बड़ा सा एक हेमरॉइडल मास, एक बड़ा सा ये हेमरॉइडल मास. नाउ दिस इज द 4th degree on strangulated hemorrhoid. इसमें ये वाला, ये 1 2 3, ये अभी स्ट्रैंगुलेट नहीं किया, अदरवाइज ये और ये स्ट्रैंगुलेट कर गया. ठीक है ना. तो दिस इज द फाइंडिंग ऑन द एनोस्कोपी ऑफ दिस हेमरॉइड्स. ठीक है ना. सो कमिंग टू द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द हेमरॉइड्स. नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग पेशेंट को सबसे पहले जो चीज बताना है कि स्ट्रेनिंग प्रिवेंट करना है. ये 10 बार इनको जरूर बताना है. अभी हम लोगों ने बात किया, यू हैव टू आस्क टू अवॉइड हिम or her to strain. Maintenance of local hygiene is of paramount importance, क्योंकि कई बार होता है पेशेंट हेमोरॉइडल जो प्रोलैप्स होता है उसके नाते अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है. एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु गो ऑन द वेस्टर्न टॉयलेट, वो कमोड जो यूज करते हैं, उनको हाइजीन का इशू इज ऑलवेज देयर. तो इंडियन टॉयलेट्स में हाइजीन इशू इज नॉट दैट बिग एज इन द कमोड. तो मेंटेनेंस ऑफ द लोकल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Many a times you may need to tell your patient to have sets bath. मान लीजिए पेशेंट सफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको बोल दीजिए एक टब ले लेने को. टब में you ask patient to have just a lukewarm water. कई बार we have also seen patient जो गर्म पानी लेकर उसमें बैठ जाते हैं, पूरा एरिया जल जाता है. वो बर्न की तरीके से, मतलब हेमरॉइड तो मान लीजिए था ही, वो बर्न के साथ आ जाते हैं. तो बर्न नहीं होना है. पेशेंट को बोलिए जस्ट टच करने पे आपको वार्म सा फील होता है, बस उतना ही. ओके. there is habit in some surgeons, वो कहते हैं सेवलॉन डाल के या बीटाडीन डाल के उसमें बैठना है. more of this is as a placebo. इसके लिए जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें किसी भी एजेंट को डालने से कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता, लेकिन उसका फायदा एक ये है कि ये जो मरीज है हमारा, इसको लगता ही नहीं कि हमारा इलाज चल रहा है जब तक कुछ उसमें रंग न पड़ता है. तो आप सेवलॉन डाल दीजिए तो थोड़ा पीला पीला हो जाएगा, बीटाडीन डालने से थोड़ा पीला पीला हो जाएगा, तो मरीज को लगेगा हाँ भाई अब हमारा इलाज जरूर चल रहा है. तो ये थोड़ा सा पेशेंट को का साइकोलॉजिकल वो मैनेजमेंट भी करना पड़ता है. तो आप सेवलॉन या बीटाडीन कुछ भी बोल सकते हैं डालने को, बट इट इज हार्डली ऑफ एनी बेनिफिट. एंड इफ यू एट ऑल विश टू ऐड समथिंग, यू शुड बेटर ऐड बीटाडीन रादर देन यूजिंग सेवलॉन, क्योंकि सेवलॉन से मेल पेशेंट अगर है तो स्क्रोटल स्किन में बर्न्स बहुत सीवियर होते हैं सेवलॉन से, तो सेवलॉन शुड नॉट बी यूज. इसलिए बेटर होगा टू यूज बीटाडीन. तो मेंटेनेंस ऑफ लोकल हाइजीन, तो ऐसा करने से स्ट्रेनिंग से एक तो हल्का सा गर्म पानी होगा तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, उससे हाइजीन भी मेंटेन हो जाएगी. ठीक है ना. तो एंड डेफिनेटली यू हैव आस्क्ड पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, हैव बेटर डाइटरी हैबिट इन फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ बल्क इन द डाइट, लॉट ऑफ रश इन द डाइट. देन यू नीड टू सप्लीमेंट दिस विद द मेडिकल ट्रीटमेंट टू कीप द स्टूल सॉफ्ट, form and regular. Stool softener, laxative, ये सब चीजें on temporary basis on for bit longer time ये आपको देना पड़ सकता है. There is indication to give fiber supplemented, जैसे एस्फागुला हस्क आती है ना, इसबगोल बोलते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में. तो ये फाइबर सप्लीमेंट, लॉट ऑफ फाइबर सप्लीमेंट्स आर देयर. उसको लैक्टोलोज के साथ मिक्स करके लॉट ऑफ प्रिपरेशंस आर कमिंग. उसका फायदा ये होता है, मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है, तो ये जो एस्फागुला हस्क होती है, इट एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर, तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है, बल्क बना देता है. ठीक है ना. तो मेनी ऑफ दीज ब्लीडिंग्स दे गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिलीफ. फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आराम से इन सबको लेने से फायदा पेशेंट को हो जाता है. अब हम लोग बात करेंगे 3rd डिग्री और 4th डिग्री के बारे में. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया कि इन सारे पेशेंट्स में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है ना. In absence of symptomatic external hemorrhoid, 2nd and some 3rd degree internal hemorrhoids can be
dealt with office procedure, जैसे कि हम लोगों ने एक बात किया ऑफिस प्रोसीजर बैंडिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक स्टिच ले लें, इंटरनल हेमोरॉइड है तो पेनलेस होगा, एक स्टिच लेके म्यूकोसा से फिक्स कर दें तो जो बल जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा। बाकी तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन दे ही रहे हैं। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, हीटर प्रोब, बाइपोलर कॉटरी, ये सारी चीजें काफी सारे प्रोसीजर्स हैं जिनमें सबको नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। रबर बैंड लाइगेशन, इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी। दिस इज अगेन एन ऑफिस प्रोसीजर, हार्डली रिक्वायर्स एनी एनेस्थीसिया, only a ligator is needed, is done by anoscope. Preferably only one side should be banded at one time, and many settings are required, so more than one applications are required many a times, and many of these patients they get relief by this. अब ये देखिए, ये इस तरीके का इसमें भी होता है, ये ऑब्ट्यूरेटर है, ये जो अंदर जाता है इसी के ऊपर बैंड चढ़ा लेते हैं, है ना। अब ये एनोस्कोप है हमारा, ये जो इस हाथ में पकड़ रखा है, एनोस्कोप की शीथ अंदर छूट गई और ये यहाँ से अंदर गया, ये हेमोरॉइड है, इसको पकड़ के इसी में बैंड लगा देता है। ये एप्लीकेटर यहाँ पे जो है, ये हाथ जो है, इस लीवर को जैसे ही प्रेस किया जाएगा, बैंड जो यहाँ टिप पे है वो एंगेज हो जाएगा उसमें, और फाइनली ये जो हेमोरॉइडल मास है उसके बेस पे यहाँ पे बैंड लग जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इश्केमिक नेक्रोसिस से ये स्विच ऑफ कर जाएगा। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने ज्यादा लगा दिया, म्यूकोसा सेट ऑफ कर गई, तो पेरिनियल सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ म्यूकोसल बैरियर। ठीक है, समटाइम्स पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, फीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ पेरिनियल सेप्सिस। दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हु आर ऑन एंटीप्लेटलेट और वारफेरिन इवन एंड इन इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट, ठीक है ना। और रिस्क वाले पेशेंट जो हो उनको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का प्रिवेंशन देना होता है। So this is till now about the non-surgical treatment of the hemorrhoids. So about surgical treatment and rest of the things we'll be discussing in the next class. Okay. So if you have any query, you can please ask. No, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.